औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। Students, yesterday we have completed the theory section of this chapter, chapter number 4, work and energy. Now today we are starting its exercise section, and in this section we will discuss about short question answers and numerical problems of chapter number 4, work and energy. Start with short question answers. A bucket is taken to the bottom of a well. Does the bucket possess any potential energy? Explain. यानी एक बकेट है जिसको बॉटम ऑफ द वेल के अंदर रखा गया है, क्या उस बकेट की किसी किस्म की पोटेंशियल एनर्जी होगी या नहीं होगी? Yes, bucket possesses potential energy because it is taken to the bottom of well. Some work is done against the friction upthrust of the water. This work is stored in form of potential energy in the bucket. It is negative potential with reference to the ground level. Question number 4. Is kinetic energy a vector quantity? No, kinetic energy is a scalar quantity. The formula for the kinetic energy is half mv square, or kinetic energy half mv dot v. So mass of body is scalar quantity and v gives dot product, so kinetic energy is a scalar quantity. Question number 5. What happened to kinetic energy of a bullet when it penetrates into a target? Moving bullet possesses kinetic energy when it hits the target and penetrates. Some of its kinetic energy is used against the friction provided by target material, and it's also dissipate energy in the form of heat and sound. According to work energy principle, W is equals to half mvf square minus half mvi square. When bullet come to rest, Vf equals to 0, so W is equals to half minus half mvi square. Question number 10. A man rowing boat upstream is at rest with respect to shore. Is he doing any work? एक rowing boat है जो upstream के अंदर rest में मौजूद है with respect to shore, यानी उसके साहिल के लिहाज से. Is he doing any work? क्या वो कोई work कर रही है? आंसर है no work is done as boat is at rest with respect to shore. यानी किसी किस्म का कोई work done नहीं हो रहा with respect to shore क्योंकि boat rest के अंदर है. Therefore d equals to 0, डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा. W is equals to FD cos थीटा, क्योंकि D 0 है आपके पास, तो आपके पास वर्क डन जो है वो 0 आ जाएगा. Numerical problems. Question number 1. A 70 kg man run up a long flight of stairs in 4 seconds. एक 70 kg का मैन है जो कि रन कर रहा है एक लॉन्ग फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स के ऊपर 4 सेकंड तक. The vertical height of the stair is 4.5 meter. Vertical height of stair 4.5 meter given है. Calculate his power. उसकी पावर कितनी होगी? We know that power is equals to work done per unit time. फॉर्मूला पुट करते हैं वर्क डन का, क्योंकि वो हाइट के ऊपर जा रहा है तो वर्क डन आपके पास यहाँ पर हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी के बराबर mgh over t. m आपके पास गिवन है, g आपके पास गिवन है, 4.5 मीटर हाइट आपके पास गिवन है, डिवाइड कर दिया टाइम 4 सेकंड से, आपके पास आंसर आ जाएगा 771.5 वॉट्स या 7.72 into 10⁻². Question number 2. A body of mass m 2 kg is dropped from a rest position 5 meter above the ground. What is its velocity at the height of 3 meter above the ground? एक बॉडी है जिसका मास 2 kg है, उसको ड्रॉप किया गया है एक रेस्ट की पोजीशन से जो कि 5 मीटर अबव है ग्राउंड से, यानी कि ये बॉडी है ये 5 मीटर अबव है ग्राउंड लेवल से. व्हाट इज इट्स वेलोसिटी एट हाइट ऑफ 3 मीटर अबव द ग्राउंड? 3 मीटर की हाइट के ऊपर ग्राउंड से नीचे आते वक्त जब वो हाइट से नीचे की तरफ आ रहा है तो इस पॉइंट के ऊपर जहां पर ग्राउंड से लेके इस पॉइंट तक का डिस्टेंस 3 मीटर है, इस पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होगी उस बॉडी की, वो हमें यहाँ पे फाइंड करनी है. नाउ कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि उसमें
जब वो रेस्ट में था इनिशियली तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम थी, काइनेटिक एनर्जी 0 थी, और जैसे जैसे वो नीचे आना शुरू किया उसने तो पोटेंशियल एनर्जी लॉस होना शुरू हुई और काइनेटिक एनर्जी गेन होना शुरू हुई इस बॉडी के अंदर। तो यही चीज हमने यहाँ यूज करी, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी, mgh1 minus h2 is equals to half mvf square minus vi square। वैल्यूज पुट करते हैं, m की वैल्यू 2 गिवन है, g की वैल्यू 9.8 है, 5 h1 की वैल्यू माइनस 3 h2 की वैल्यू इक्वल किस तरफ हाफ, m की जगह 2 वी एफ स्क्वायर वी आई स्क्वायर, यानी कि इनिशियली यहाँ से स्टार्ट हुई थी तो वी आई 0 थी, हमने यहाँ पे 0 पुट कर दिया। जब इसको सॉल्व किया तो वी एफ स्क्वायर आपके पास बराबर आया 39.2 के, बाय टेकिंग स्क्वायर रूट वी गेट वी एफ इज इक्वल टू 6.3 मीटर per second। Question number 4. A roller coaster car starts its journey from a vertical height of 40 meters on the same and reached a vertical height of only 25 meters on the second hill, where it slowed to the momentary stop. It traveled a total distance of 400 meters. Determine the thermal energy produced and estimate the average friction force on the car whose mass is 1000 kg। एक कार है, रोलर कोस्टर है, जो अपना सफर स्टार्ट करती है एक वर्टिकल हाइट से, फर्स्ट हिल 40 मीटर पे आती है वो, देन दूसरी हाइट वो अटेंड करती है 25 मीटर की जो कि सेकंड हिल के ऊपर है, जहां आके वो अपनी स्पीड स्लो करती है और कुछ देर के लिए रुक जाती है। इसका टोटल डिस्टेंस जो इसने ट्रेवल किया है वो 400 मीटर के बराबर है। उसके हमें बताना है कि कितनी थर्मल एनर्जी जनरेट होगी और एस्टिमेट करना है हमें एवरेज फ्रिक्शन फोर्स को जो कि उस कार के ऊपर लग रही है जिसका मास 1000 kg यहाँ पे गिवन है। वही फॉर्मूला यूज करेंगे जो हमने इससे पहले यूज किया था, लॉस इन काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। यही चीज आपके पास यहाँ पर mg h1 माइनस h2 इज इक्वल टू हाफ m vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर प्लस fs, यानी वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन जो है वो आपके पास fs के बराबर है। वैल्यूज पुट करेंगे, वैल्यूज पुट करके जब आप f की वैल्यू फाइंड करेंगे तो आपके पास आ जाएगी 367.5 which is approximately equal to 370 न्यूटन। Question number 6. To what height can a 400 watt engine lift a 100 kg mass in 3 seconds? कितनी हाइट पर एक इंजन जिसकी पावर 400 वॉट है 100 kg के मास को 3 सेकंड के अंदर पहुंचा सकता है। फॉर्मूला यूज करेंगे पावर का, पावर बराबर है वर्क डन पर यूनिट टाइम, और मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर हाइट की बात की जाएगी तो वर्क डन जो है वो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी के बराबर आ जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला वर्क डन की जगह पुट कर दीजिए mgh ओवर टी, एज इट इज आ गया आपके पास। यहाँ पे हमें हाइट की वैल्यू निकालनी है, रीअरेंज करेंगे p मल्टीप्लाई बाय टी एंड m मल्टीप्लाई बाय g डिवाइडिंग में आ जाएगा। वैल्यूज पुट करेंगे, यहाँ पर तमाम वैल्यूज गिवन है, आपके पास आंसर आ जाएगा 0.122 मीटर। Question number 7. A ball of mass 100 gram is thrown vertically upward at a speed of 25 meter per second. If energy is lost, determine the height it would reach. If the ball only rises to 25 meter, calculate the work done against air resistance. एक 100 ग्राम की बॉल है जिसको वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया गया है जिसकी स्पीड 25 मीटर पर सेकंड गिवन है। अगर एनर्जी लॉस होती है वहां पे तो आपको बताना है कि कितनी हाइट तक वो पहुंचेगा, और अगर वो बॉल 25 मीटर तक का ही सफर कर रही है तो हमें बताना है कि वर्क डन अगेंस्ट एयर रेजिस्टेंस कितना किया होगा। If we ignore the air resistance, then we have loss in kinetic energy equals to gain in potential energy। वही फॉर्मूला यूज कर लेंगे, हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू mgh, और यहाँ से आपके पास हाइट की वैल्यू आ जाएगी 31.9 मीटर जब आप इसको रीअरेंज करेंगे h के लिहाज से। m से m कैंसिल हो जाएगा, v स्क्वायर h बराबर हो जाएगा हाफ g v स्क्वायर के। वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास 31.9 आंसर आ जाएगा। इसका बी पार्ट, if h dash is equals to 25 meter, in this case of air resistance we have loss in kinetic energy equals to gain in potential energy plus work done against the friction force।
और हमें जब वर्क डन निकालना है तो आपके पास हो जाएगा लॉस इन काइनेटिक एनर्जी माइनस गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, so half mv square minus mgh dash, and by putting the values we get W equals to 6.7 joules. We know that W is equals to FD, तो F की वैल्यू आपके पास आ जाएगी W over D के बराबर। W की वैल्यू आपने 6.7 जूल यहाँ निकाली थी, D आपके पास 25 है, तो टोटल 0.3 न्यूटन इसका आंसर आ जाएगा। Question number 9. A body of mass m dropped from a bridge into a water of the river. The bridge is 10 meter high from the water surface. Find the speed of body 5 meter above the water surface and find the speed of body before it strikes the water. यानी आपके पास एक बॉडी है जिसका मास m है, उसको ड्रॉप किया गया है एक ब्रिज से। ब्रिज की हाइट 10 मीटर गिवन है आपको। आपने फाइंड करना है कि जब वो बॉडी 5 मीटर पर आएगी अपनी हाइट से तो उसकी स्पीड क्या होगी, और जिस वक्त वो गिर के टकरा रही होगी उससे जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग पॉइंट वाटर का उस पे उसकी स्पीड कितनी होगी। सबसे पहले ए पार्ट निकालते हैं। गेन इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि हाइट से बॉडी नीचे की तरफ आ रही है, काइनेटिक एनर्जी गेन करेगी और पोटेंशियल एनर्जी वो लॉस करेगी। फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, हाफ mvf स्क्वायर माइनस mvi स्क्वायर व्हिच इज इक्वल्स टू mgh1 माइनस h2। by putting the values in this formula and rearranging this formula we get vf, और vf का फॉर्मूला आ जाएगा 2gh1 माइनस h2। इसमें वैल्यूज को पुट करेंगे तो vf की वैल्यू आ जाएगी 9.9 मीटर पर सेकेंड। नाउ बी पार्ट में आपके पास जस्ट स्ट्राइक जस्ट बिफोर हिट द वाटर, आपको पॉइंट के ऊपर स्पीड फाइंड करनी है। उसके लिए हाफ एम वी एफ डैश स्क्वायर माइनस हाफ माइनस वी आई स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी एच वन, क्योंकि यहाँ पर कंप्लीट हाइट कवर हो चुकी है, तो कंप्लीट हाइट कवर होने की वजह से h1 की वैल्यू को कंसीडर किया गया है। नाउ हाफ m vf डैश स्क्वायर माइनस 0 इक्वल्स टू mgh1। फिर आप यहाँ से vf स्क्वायर की वैल्यू को रीअरेंज करके फाइंड करते हैं, तो आपके पास वो आ जाती है 2gh1। आप स्क्वायर रूट में लेते हैं इस वैल्यू को, तो vf डैश बराबर हो जाएगा रेडिकल 2gh1। वैल्यू पुट करेंगे 2 9.8 और h1 की वैल्यू 10, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 14 मीटर पर सेकेंड। Question number 11. The mass of moon is 180 of the mass of earth and the corresponding radius is 1 over 4 times of the earth. Calculate the escape velocity on the surface of moon. Surface of moon पर से escape velocity find करनी है, जबकि dimension of moon जो है with respect to earth आपके पास given है। According to the given data, mass of moon 1 over 80 times of mass of earth है, यानी 1 over 80 into 6 into 10 to the power 24 kg। रेडियस ऑफ मून आपके पास 1 over 4 टाइम ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ है, जो कि 1 over 4 मल्टीप्लाई बाय 6.4 into 10 to the power 6 मीटर, which is equals to 1.6 into 10 to the power 6 मीटर के बराबर आ जाएगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून जो है वो 1 over 6 टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ है। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1.63 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नाउ एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला 2gmrm, वैल्यूज पुट करेंगे तमाम, तो आपके पास escape velocity on moon आ जाएगी 2.5 किलोमीटर पर सेकेंड। Thank you students. If you have any problem or if you have any query, then you can ask me on my WhatsApp number and through Google Classroom. Thank you again.